गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ C++ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕਲਾਸ। ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਕਲਾਸ 1 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਸ ਕਲਾਸ 2 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊਸ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ ਕਲਾਸ 1 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਬੇਸ ਕਲਾਸ 2 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੂਟ ਨੋਡ। ਫਿਰ ਰੂਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੂਟ ਨੋਡ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਕਲਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ C++ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਰੀਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਭੇਜਦੀ ਆ ਸਲਾਈਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਭੇਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸਣੀ। ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਡਰਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ। ਹੈਰਾਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੀ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ। ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਡ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਮੋਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਮੋਡ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ C++ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸ ਕਲਾਸ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ 'ਚ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੇਸ ਕਲਾਸ, ਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਡਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਆਈਓਸਟ੍ਰੀਮ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟਸ ਵੈਲਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੇਮ ਸਟੇਮ ਐਸਟੀਡੀਐਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਿਆ, ਫਲੋਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।
फिर प्रोग्राम उन्होंने प्रोग्राम की किया P1 दे दिता कि जो कोई भी वैल्यू को P1 च आके असाइन होगी। फिर उन्हें मैसेज डिस्पले करता जो जो सैलरी आऊगी उन्हें P1 सैलरी की कहते डिस्पले करनी, जो की कहते बोनस होगा P1 डॉट बोनस ने एक्सप्लेन करना। ठीक है जिदा फिर इन्होंने किया रिटर्न 0 ना बंद किया तो कर्ली ब्रेसिस ने भी किया बंद। तो आगे आउटपुट की सैलरी साड़ी किन्ने 6000 तो बोनस किन्ने आंदा 5000। इनू कहते आप कि सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। अगला है मल्टी लैवल इनहेरिटेंस। मल्टी लैवल इनहेरिटेंस की होंगे एक की कहते एक ड्राइव क्लास होंगी है तो अनदर बेस क्लास होनी है। ठीक है ए की है ड्राइव क्लास, बी तो सी की है बेस क्लास। की कहते ए की वैल्यू अपनी बी च भी जानी तो सी च भी असाइन होनी, उन्होंने कहते मल्टी लैवल इनहेरिटेंस की मेन जो आप रूट नोट होगा ए वो वैल्यू बी च भी असाइन होनी सी च भी असाइन होनी है। जिदा सा नैक्सट प्रोग्राम है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तुहानू ये पता कि फिक्सड वैल्यूज ने कि प्रोग्राम डिफाइन करते प्रोग्राम स्टार्ट होंगे तो यूजिंग नेम स्पेस STDI कि प्रोग्राम डिफाइन किस टाइप का प्रोग्राम पर डिफाइन करना। हूँ साढ़े पहली क्लास में एनीमल एक है साड़ी मेन क्लास उन्होंने पब्लिक डिस्पले किया कि फंक्शन बनाया वॉइड इट मतलब एनीमल्स कुछ खाओगे। फिर वह मैसेज किया ईटिंग कि पहला फंक्शन बन गया ईटिंग कि जो कोई एनीमल भी कुछ खाओगे वो फंक्शन डिस्पले कराता। नैक्सट अपना है डॉग, दूसरी क्लास में डॉग वो भी कि अपना एनीमल वो की करूँगा की करूँगा पब्लिक च बार्क वो फंक्शन की बनाता बार्क। तो मैसेज की है ना बार्क कि मैसेज डिस्पले कराता बार्किंग और बार्किंग मतलब भौंकना। क्लास अगे बेबी डॉग की होगा वो भी पब्लिक च आ जूगे। पब्लिक मतलब पब्लिक च की मैसेज डिस्पले करना वीप मतलब कि जो छोटे डॉग के बच्चे होंगे कि कहते किदा कि ऑपरेशन समय सौंदे जो छोटे बच्चे होंगे थोड़ा सौंदे होंगे क्योंकि जो कोई चीज़ होगी हौली हौली ग्रोथ होता मैसेज है वीपिंग। तो इन्हें कहते कली ब्रेसिस ने आप किया बंद। तो इंट मेन आप कहते फंक्शन में की वैल्यू पैरामीटर पास करें वॉइड जो भी पीछे सानू वैल्यूज आई सानू की मैसेज शो करना बेबी डॉग नू D1 का ऑब्जेक्टिव बनाया डॉट ईट तो एक फंक्शन स्टार्ट किए सेमीकोलन ने बंद किया। ये साडे ऑब्जेक्ट्स बने D1 डॉट बार्क ऑब्जेक्ट बनाए D1 डॉट वीप तो रिटर्न किया बंद। जो भी आप कहते मैसेज तो वो अकॉर्डिंग साडी आउटपुट की ने ईटिंग बार्किंग वीपिंग ये साडी आउटपुट है। अगर अपना है मल्टीपल इनहेरिटेंस का की होंगे कि साड़ी की कहते एक तो ज़्यादा बेस क्लास होंगी तो कहते एक ड्राइव क्लास होंगी है। ठीक है साड़ी जी बेस क्लास होंगी एक 3-4 भी हो सकती है पर ड्राइव क्लास कि होंगी 1। तो सिंटैक्स की आप क्लास डी ली विजिबिलिटी की लिए B1 तो दूसरी विजिबिलिटी लिए B2 एंड आप एन तक लैके जानी है। फिर बॉडी ऑफ क्लास की आप किस टाइप की क्लास डिफाइन करनी है बॉडी ऑफ द क्लास आप डिफाइन कर सकते हैं कि पब्लिक च डिफाइन करनी कि प्राइवेट च जो पब्लिक भी डिफाइन करें तो की वैल्यूज देनी है की कंडीशनस लगानी हो साडी बॉडी ऑफ द क्लास आ जाता। जिदा साडा प्रोग्राम है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिया प्रोग्राम डिफाइन किया। फिर यूजिंग नेम स्पेस तुहानू पता ही कहना प्रोग्राम डिफाइन कर पहले एक क्लास में ए फिर केड़ा क्लास यूज़ की प्रोटेक्टेड यूज़ के कहते इंट के ए लिया मतलब आप टीजर की डिफाइन किया ए तो पब्लिक च उन्होंने की करना कि जो भी अपना वो की कहते ए की वैल्यू आऊगी सारी कि जाएगी इंट एन तो ए नू आप की असाइन करता एन ए की वैल्यू कि जानी अपनी एन जो भी अपनी कहते वैल्यू सब कंटीन्यूस चलनी है। फिर कर्ली ब्रेसिस सेमीकोलन ने किया बंद। फिर आप दूसरी क्लास स्टार्ट की बी उन्होंने कि डिफाइन किया प्रोटेक्टेड तो दूसरी वो वैल्यू के लिए बी उन्होंने की कहते इंटीजर बी ना डिफाइन किया। तो फिर कहते जो आप कोई फंक्शन डिस्पले कराया उन्होंने कहते जी बी की वैल्यू कि शो होनी है एन के जो भी बी की वैल्यू होगी एन के रूप में सू शो होनी। फिर आप क्लास सी बनाई फिर क्लास सी का की काम है साढ़े की कहते ड्राइव क्लास होंगी है इस पब्लिक ए तो पब्लिक वीक की जो भी वैल्यू सू असाइन हो गया ये की कहते लास्ट में सू शो होनी है। फिर आप पब्लिक एक होर क्लास बनाई पब्लिक वर्ड डिस्पले मतलब कि जो भी आप काम किया वैल्यू साइन होने सू स्क्रीन पर डिस्पले हो जाए। फिर वो की STD सी आउट मैसेज शो करना कि पहली वैल्यू ताड़ी ए की आनी फिर उन्होंने बंद किया। फिर दूसरी वैल्यू जो भी आप साइन की है बी की वो आनी फिर दोनों का एडिशन सानू आना है उन्होंने कहते सेमीकोलन कर्ली ब्रेसिस ने किया बंद रिटर्न 0 ने किया बंद। तो वैल्यू सानू की आनी कि ए वैल्यू जो भी एंटर की 10 तो बी की होनी 20 जो इन्होंने दोनों ने ऐड करूँगी तो आंसर की है ना 30।
तो साडा नैक्सट प्रोग्राम हैगा C++ का प्रैक्टिकल 5th का बी पार्ट मैंबर फंक्शनस। आप कहते ए पार्ट कर लिया क्लासिस बनानी है डाटा मैंबरस ਨੂੰ ਆਪਾਂ नैक्सट पार्ट है मैंबर फंक्शनस। एच साडा की ਆਪਾਂ वैल्यू इनिशियल ਕਿਹੜੀ वैल्यू लैनी है ए पार्ट च उन्होंने किद्दां डिपोजिट करना अमाउंट ਨੂੰ किद्दां कढवानी है किद्दां हो के कहते बैलेंस चैक करना किद्दां डिस्प्ले कराना। ठीक है साडा पहला है हैश इनक्लूड iostream.h। ये तुहानूं पता साडे कॉन्सटेंट फंक्शनस होंदे अपने लैने की कहते अपने डिस्प्ले करने पैंदे कोनिया.h भी डिस्प्ले करना एसटीडी सब फिक्सड वैल्यू प्रोसैस जोड़ा है प्रोसैस मतलब कि आप कहते अपनी कोई भी अमाउंट उन्होंने की कहते ना किद्दां प्रोसैस होंदा किद्दां जमा होंदा किद्दां कढाउंदा उहदे लई आपां प्रोसैस यूज़ किया। क्लास आपां यूज़ की बैंक उन्होंने आपां किस डिफाइन किया पब्लिक दे पब्लिक विच की कहना कि वो बंदे दा की नाम है उहदा साइज़ आ 20 तो काउंट टाइप जो अकाउंट नंबर होगा वह भी नंबर कहते च होगा कि नंबर च उन्होंने आप की वैल्यू सन की 20। इंट अकाउंट नंबर मतलब कि उस बंदे का नंबर कि उन्होंने इंटीजर डिफाइन किया। वह बैलेंस मतलब नंबरस च होंदा उन्होंने इंटीजर ने डिफाइन किया। अगे आप अगला है कि वर्ड इनिशियलाइजेशन मतलब कि एक फंक्शन है कि वैल्यू इनिशियलाइज किद्दां करनी है। ठीक है अगे मैसेज डिस्प्ले करता कि एंटर दी होल्डर नेम पहला मैसेज है होल्डर नेम की आना चाहिए साडा ਉਹਦੀ वैल्यू कैच जानी गैट के विच दैस अकाउंट नैक्सट आप मैसेज की डिस्प्ले किया कि अकाउंट टाइप किद्दां दा हैगा ਉਹਦੀ वैल्यू कैच जानी गैट्स के अकाउंट टाइप के विच। नैक्सट मैसेज आप की डिस्प्ले किया अकाउंट नंबर वो बंदे का अकाउंट नंबर की है कंडीशनस ये अपनी कंडीशनस लग जानी है। तो नैक्सट अपना मैसेज है कि होर की आप एंटर कराने बैलेंस कि कितना बैलेंस डिपोजिट कराया तो फिर कहते सीन जो बैलेंस की कंडीशनस लग जानी है कि किन्ने साल च किन्ने महीने किन्ना बैलेंस डिपोजिट किया। फिर आप की फंक्शन बनाया वर्ड डिपोजिट बनाया तो वह की कहते उन्होंने वैल्यू की बैलेंस का मैसेज की शो करवाता अमाउंट ऑफ डिपोजिट कितना साडा है वो आप कंडीशन चैक ला के अपने अकॉर्डिंग बैलेंस एंटर करानी है। फिर वह फॉर्मूला है तो बैलेंस प्लस इक्वल टू बैलेंस के इक्वल होगा कि बैलेंस बराबर है कि नहीं है वो चैक करना। फिर एक और मैसेज डिस्प्ले किया कि अमाउंट आप कितनी डिपोजिट करवाई है सक्सैसफुल डिपोजिट होंगी भी कि नहीं होंगी भी बैंक च वो मैसेज डिस्प्ले कराया। फिर कली ब्रेसिस ने किया बंद। फिर अपना नैक्सट फंक्शन बनाया चैक कि जब सारा काम हो गया तो वो कि चैक करते हैं वो आप चैक फंक्शन बनाया। इंट बैलेंस मतलब कि बैलेंस लिए आप इंटीजर वैल्यू यूज़ करते इसलिए आप इंट ना उन्होंने कहते डिफाइन किया। नैक्सट साडा मैसेज की डिस्प्ले होना कि तुहाडा बैलेंस किन्ना है इन्ने की कहते किन्ने विड्रॉ तुसीं किन्ने पैसे कढवाए किन्ने जमा करवाए वो मैसेज डिस्प्ले करवाता तुहानूं। फिर तो अपनी कंडीशनस लगी सीन बैलेंस कि किन्ना तुहाडा बैलेंस है। फिर अगे आप लाई इफ कंडीशन आप की चैक करना कि बैलेंस लैस दैन इक्वल टू बैलेंस राउंड ब्रैकेट ने बंद किया। जब बैलेंस की कहते दूसरे बैलेंस तो ज़्यादा घट होगा वो अकॉर्डिंग वो कंडीशनस लगनियाँ है। फिर ने दसने कली ब्रेसिस मतलब बैलेंस के जे बैलेंस की कहते लैस दैन इक्वल टू बैलेंस है फिर बैलेंस के इक्वल है ना बैलेंस से। फिर मैसेज क्या है रिमेनिंग बैलेंस तुहाडा किन्ना है फिर किया कली ब्रेसिस ना बंद किया। फिर अगे लगा एल्स जे इदा का नहीं है फिर कहते प्रोग्राम बंद कर देना। फिर वर्ड डिस्प्ले लाया और कहते कली ब्रेसिस ने स्टार्ट किया कि कहते नैक्सट मैसेज की दिता कि वह बंदा सी आउट _n नेम वो बंदे का नाम की है किच चल जाना पुट्स नेम मतलब नाम देख लेना कि वह बंदे का नाम की है जो बंदा पैसे जमा करने कढवांदा पिया। तो सी आउट नैक्सट मैसेज किया दे देना कि _n बैलेंस कोलन बैलेंस ये कहते तुहानूं मैसेज शो हो जाना। तो कली ब्रेसिस ने बंद किया। तो नैक्सट तुहानूं की कहते आप वॉइड मेन फंक्शन बनाया आप की करना कली ब्रेसिस स्टार्ट किया एक आप वैल्यू डिफाइन की आई जिन्हें आप इंटीजर कहते कि कहते इंटीजर्स वैल्यू लैन लिए आप आई यूज़ किया। अगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन मतलब तो साढ़े फंक्शनस डिफाइन होंगे बैंक लिया बैंक का ऑब्जैक्ट बनाया। ठीक है इनू ऑब्जैक्ट कहते ऑब्जैक्ट आप दूसरी टाइप का किद्दां एक्सप्लेन करते बी के मतलब बैलेंस बैंक डॉट इनिशियलाइज उन्होंने आप कि इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर एक होर मैसेज डिस्प्ले किया आप की कहते हैं वैल्यू इंफॉर्मेशन जो तुहाडा सारा काम हो गया प्रॉपर पैसे कढवाते जमा करवाते तुहाडा ये मैसेज शोना योर इंफॉर्मेशन इज डिपोजिट विड्रॉल एंटर योर चॉइस नेम ये मैसेज शोना उन्होंने कहता कोई भी नंबर एंटर करो उन्हें तुहाडा सारा कुछ शो हो जाना। फिर तो अपनी नैक्सट है सीन फिर जब आप कंडीशन चैक करने जो आप वैल्यू पर डिफाइन किए आई कि वो कंडीशन कितने तक जाती पई है 1 2 3 एक कंडीशन चैक करनी है। फिर अपनी इफ कंडीशनस लगी जे अपना की कहते आई इक्वल टू है 1 फिर उन्हें कहते बैलेंस हम डिस्प्ले करवा देना नहीं जो 2 है फिर उन्हें कहते डिपोजिट कर देना जो आप कहते 3 उन्हें चैक कर देना। फिर कली ब्रेसिस ने बंद किया गैट्स दी एज ने बंद किया कली ब्रेसिस ने बंद किया।
ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਗਲੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ।